Okay, let's begin with our class. So today we are going to discuss about working with string in Python. Whenever we talk about a string, so today's topic is about working with a string in Python. So whenever we talk about a string, the first thing should come in our mind, what exactly is string? Or we can say what is mean by a string. In easiest way, we says a string is a type of the data in Python that represent text. In normally, a string means text. In Python also we consider as a text. It is made up of characters, letters, numbers, symbols, spaces, and punctuations. Whatever you wanted to write in a computer program and you wanted to use the same whatever you mention as the complete sentence I mentioned on the screen on the speed, like topic, working with the string in the Python. This entire thing is considered as a string. So we have to deal this string in a computer system, especially in Python. So all grouped together and enclosed in a quotation marks. Whenever we wanted to work with the string, and we always try to write something like in the form of symbols, letters, spaces. So we always use the quotation marks to display or to represent text in programming language. That is the first part. Like we says, okay, what is a string? What is a string? So in easy way, we say a string is a type of data in Python that represent text. Examples we can say letters, numbers, symbols. Okay, these are the examples of text or a string. In other words, we say okay, why the string matters, why it is important in a computer system or programming to work with it. As so far we already discussed that कि हमें अगर कोई प्रॉम्प्ट मैसेज देना है तो हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो मैसेज को लिख सकते हैं, चाहे वो इनपुट का हो चाहे वो आउटपुट का, बट स्टिल why do we have a proper class for working with string in Python? Because there are multiple reasons. It says that string are one of the most important and commonly used data type because we use text everywhere, like names, emails, messages, password, addresses. Everywhere we have to write the text. And when we talk about the real world environment, our real systems, okay, whenever we talk about okay, where we can use the directly in a computer system, whenever we create a login system, you have to write the username and password. What is it? It's a text. When you talk about while you're using a chatbot on a particular website, like asking about your orders, like कि अगर आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो छोटा सा चैट बॉक्स खुलता है एंड यू आर राइटिंग अ मैसेज टू दैट, ठीक है, या आप कोई चैट जीपीटी या कोई ऐसा एआई करते हो, वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हो. So whenever we talk about the text, we always have to use the string in a programming, like website, reporting, search engines. So you often need to search, modify, clean, or analyze the text while giving any instructions. So this is a very important area. Okay, when we talk about the why it's matter, so it's matter because of its important and commonly used data because of using the different systems like a login, chatbot, websites, reports, and search engines. Furthermore, if you go for the key benefits, like the key benefits or benefits of learning, okay, what you will going to do with by learning it, key benefits, okay, for a string. Number one, text handling become easy and powerful. We always say okay, it's when you talk about to handle the text,
What is mean by the handling a text? It's mean that you have to deal it. Someone give the instruction in the capital letters. Someone give the extra spacing. Someone did not give any space. It's supposed to be written in the capital letters, but unfortunately the user wrote in a small letters. So you have to deal with it. So it's become hearing easily to handle it, easy and powerful. The first part, okay. Second point, it's always, okay, you can clean the messy user inputs like removing the extra spacing, making all text lower or capital. So in both way, or the technical word which says, okay, you can clean messy user inputs. Okay, whatever the pattern the user use it to give the enter, you can easily create it. Thirdly, mostly maybe you are not do not have the experience of it कि जब हम कोई फाइल अपनी बल्क में अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो स्टूडेंट लिस्ट हो या स्टूडेंट ईमेल एड्रेसेस हो, तो एक हमारे पास फाइल बनती है एसवी फाइल, CSV फाइल, जो कि एक्सेल के थ्रू बनती है और एक्सेल पे यूज की जाती है। एक्सेल की जैसे आपकी एक्सएलएस होती है, इसी तरीके से CSV फाइल होती है जो कि रो फॉर्म के अंदर डेटा जनरेट करती है। तो उसको हैंडल करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, टेक्स्ट डेटा चाहिए होता है। So whenever we talk about this, then we have to talk about this information, like you will be ready to process files like CSV files, ठीक है। तो CSV फाइल्स आप इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। Another way, when we talk about the real life examples, कि हमें रियल के अंदर क्या हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उनके अपने स्ट्रिंग्स होते हैं। लाइक जैसे हमने पहले बात की लॉगिन सिस्टम ऑलवेज यूज यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसका काम होता है कि जो टेक्स्ट आपने इनपुट किया यूजर नेम एंड पासवर्ड पे, क्या वो सही है या नहीं है। सेकंड, हमारे पास ये यहाँ पे टेक्स्ट हैंडलिंग यूज होती है ईमेल वैलिडेशन के अंदर, ठीक है। मैं आई कैन राइट ओवर हियर real examples. Number one, we can say email validation, कि आपके पास जो ईमेल वैलिडेशन होती है उसके अंदर भी हमें क्या करना है, टेक्स्ट हैंडलिंग करनी है। सेकंड, हमारे पास होता है लॉगिन पेज। जब आप लॉगिन सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम चेक करता है आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड को। थर्डली, हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम है, ऐसे तो बहुत सारे सिस्टम है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट फ्यू ओवर हियर, ठीक है। फीडबैक, कि अगर हमें किसी चीज का फीडबैक देना है तो वो फीडबैक हैंडलिंग भी हमारी किस में आ रही होती है, फीडबैक फॉर्म की आपके टेक्स्ट फॉर्म के अंदर आ रही होती है। जो फोर्थ बहुत ऐसे हमारे पास है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी, फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का जो टोटली क्या होता है, हमारे पास स्ट्रिंग होता है, किसी भी किस्म का डेटा है वो हमारे पास वहां पे काम कर रहा है, ठीक है। दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम द रियल लाइफ के जहां पर हमारे पास जो है वो फाइल हैंडलिंग अपना स्ट्रिंग हैंडलिंग जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। अब नाउ इफ वी कम फॉर द मोस्ट पार्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड एरिया इन पाइथन स्पेशली, so whenever we talk about the Python with the strings and why we had to learn it, so it's like Python offers powerful tools to create, modify, search and manipulate the text which is stored as a string, ठीक है। हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके अंदर हम ये बात करते हैं कि जब हम पाइथन को लेके चल रहे हैं तो पाइथन हमारे पास जब हैंडलिंग की बात कर रहे हैं तो ये अपने टूल्स या मेथड्स को यूज करता है, क्या करने के लिए, इन सबको सर्च करने के लिए, चेक करने के लिए और हैंडल करने के लिए, ठीक है। गॉट इट? एनी क्वेरी, एनी कंफ्यूजन सो फार? ओके, सो एज आई मेंशन कि हम जो टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और देन यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि अक्सर जब हम अपनी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कर रहे होते हैं तो ये वाला पार्ट स्टूडेंट मिस कर देते हैं, ठीक है। सो डू नॉट मिस दैट एरिया, इट इज लाइक अबाउट वी कंसीडर एज बेसिक string
ऑपरेटर्स। जैसे हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था, इसी तरीके से ऑपरेशंस हमारे पास, ये ऑपरेटर्स हम कहते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनसे हमें पता चलता है कि इसका काम क्या है और उसको हम अपनी प्रोग्रामिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ओ लेवल के बैकग्राउंड से स्टूडेंट है वहां पे कहा जाता है स्ट्रिंग हैंडलिंग, सब स्ट्रिंग, लोअर केस, अपर केस, ये सारी चीजें हमारे पास आती हैं, सब केस, तो हमें ये यूज करना होता है। तो ऑपरेशंस हमारे पास यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले इन ऑपरेशंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सो नंबर वन ओवर हियर, ठीक है। सो हम यहाँ पे ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे पहले कि व्हाट आर द ऑपरेशंस, देन एग्जांपल्स, कि उन ऑपरेशंस की एग्जांपल्स क्या है, यानी कि कोड कैसे लिखना है, और फिर उसका रिजल्ट, ठीक है, कि जो कोड आपने लिखा है उसका रिजल्ट आपको किस तरीके से दिखेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के हिसाब से यूज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है वो उसकी डिटेल्स पता चल जाए। तो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू राइट कंबाइन स्ट्रिंग, ठीक है। इजी वर्ड वी कैन यूज कंबाइन स्ट्रिंग इन कंप्यूटर वर्ल्ड कंटेंटेशन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना अपने हिसाब से कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस वेरी नाइसली। द सेकंड वर्ड, दिस वन इज अ प्रॉपर टेक्निकल वर्ड which used to combine two different strings variables. Like examples, we have to write inverted comma, then one word hello, ठीक है, and then plus sign. Plus sign is means that is going to merge two different, ठीक है, characters in a single line word. So this will be our two strings. One is this one, another is this one. And what will be right once you use this statement in your coding? So what will be the result? The result will be like hello world. Okay, they are going to combine these two words. So I wrote in the small letters, so it will be the small one. ठीक है, तो ये दो अलग अलग स्ट्रिंग थे। कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब से क्या हो गया कि इस प्लस के साइन ने दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। इसको कंबाइन स्ट्रिंग या कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन इज अप टू यू, देयर इज नो मार्क्स फॉर द प्रोनाउंसिएशन इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वहां पे काम आपको आना चाहिए, लैंग्वेज आपकी कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड वन इज रिपीटेशन। वी वांटेड टू रिपीट द सेम वन अगेन एंड अगेन, नॉट अ लूप, बट हमें वर्ड्स को रिपीट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि पाइथन, अब ये पाइथन हमें 3 दफा चाहिए, ठीक है। हम चाहते हैं इस प्रिंट में 3 दफा प्रिंट हो। हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाए और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन जो कंप्यूटर में स्टार का या स्ट्रिंग के नाम से चलता है उसके साथ हमने यहाँ पे लिखा 3। इसका मतलब ये हो कि पाइथन जो है वो 3 दफा प्रिंट होगा, ठीक है। पाइथन पाइथन एंड पाइथन, ठीक है। हमने 3 दफा लिखा तो ये 3 दफा हुआ। अगर कोई सेम वर्ड आपको मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, जैसे अगर स्कूल टाइम आपको याद हो हमारे टाइम के अंदर, तो हम वहाँ पे बात करते थे कि जो अगर आपने घर से काम नहीं किया तो हम लोग वहाँ पे पेपर पे लिखते थे आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक अगेन, आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक अगेन, मल्टीपल टाइम्स। तो अगर आपको कोई ऐसा वर्ड या सेंटेंस आपको रिपीट करवाना है तो आपने उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखकर आगे नंबर्स लिख दो कितनी टाइम में आपको उसको रिपीट करवाना है। अनदर वन इज इंडेक्सिंग। आपके पास जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है इंडेक्सिंग का। Indexing is very much important in a computer programming. It's like about the number, कि जिस नंबर के ऊपर आपकी वो वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इस चार्ट की बात करूं जो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर है, इसके अंदर इंडेक्सिंग हमारे पास किया है, ठीक है। जो ये मैंने इंडेक्सिंग का वर्ड लिखा है ये 1 3 के ऊपर है, 1 2 और 3। ये जो हमने नंबरिंग दी है कि पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, इट इज कंसीडर्ड एज अ इंडेक्सिंग इन कंप्यूटर प्रोग्राम। लाइक हमारे पास पाइथन है, हम दोबारा से वर्ड पाइथन को लेते हैं। हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पाइथन लिखा और राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा 0। अब जैसे मैंने प्रोग्रामिंग में कल भी बताया था, वो रिकॉर्डिंग चेक कर लेना कि whenever you talk about the indexing in Python especially start with the 0. It's mean that the first letter value is indexing value is 0. So इसका जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ आएगा P, क्योंकि ये पहले पे था। अगर यहाँ पर इंडेक्स के अंदर हम यहाँ पे लिखें 1
ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट के अंदर क्या प्रिंट करेगा, ये सिर्फ y को प्रिंट करेगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास आता है स्लाइसिंग, थर्ड हमारे पास है फोर्थ सॉरी स्लाइसिंग करना, मतलब किसी भी चीज की स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग सेम पाइथन, हमने वर्ड लिखा, ये करेक्टर है, अब इसको स्लाइसिंग कर रहे हैं, हमने स्लाइसिंग कर दिया 1 to 4 के 1 से 4 के हिस्सों में तो क्या कर दो, तोड़ दो। ठीक है, सो इसका मतलब ये हो गया कि 1 to 4 शुरू का जो है वो आपने इसको गायब करना है और बाकी की चीजें हमारे पास लेकर आनी है, तो आपने स्लाइसिंग करनी है। ठीक है, कि 1 2 3 4 जो भी आपके वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि 0 के ऊपर हमारे पास p था, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा y। ठीक है, फिर t और h मीन्स 1 2 3 एंड देन o, ये चार हमारे पास आ गए 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पास वहां पर आउटपुट हो जाएगा, ये दिस इज कंसीडर्ड एज स्लाइसिंग। लास्ट वन, ऐसे तो बहुत सारे बट आपके कोर्स के हिसाब से और आप लोग की जो चीजें मेरे पास चल रही है उसके हिसाब से द फोर्थ वन हमारे पास है लेंथ। बाकी हमने लोअर केस और ये सारी चीजें तो हमने पहले ही कर ली थी, अपर केस लोअर केस कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो चीजें फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। अब हमें किसी भी वेरिएबल का या किसी भी टेक्स्ट का हमें ये आइडेंटिफाई करना है कितने कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने बहुत अच्छे से देखना होता है उनको कि भाई आपकी जो फील्ड है उसमें कम से कम कैरेक्टर आने चाहिए। जैसे अगर आप किसी मॉल मार्ट वगैरह में जाते हो, वहां पे पीओएस है, तो वहां पे हर जो प्रोडक्ट है उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई होती है, पूरे पूरे प्रोडक्ट नहीं लिखे हुए होते। क्यों? क्योंकि उसके डेटाबेस की स्टोरेज में कम से कम टाइम उसको सॉरी कम से कम स्पेस लेना होता है। तो जब कभी भी हम पाइथन के अंदर किसी का कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना होता है तो हम लिखते हैं लेंथ। हमने लेंथ लिखा, ब्रैकेट के अंदर उस टेक्स्ट को लिखा या उस वेरिएबल को लिखा जिसके अंदर वो टेक्स्ट आपने कैलकुलेट करवाना है। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 6, क्योंकि टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है 6 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आउटपुट क्या हुआ 6 कैरेक्टर्स। सो दैट्स इट फॉर अस के बेसिक ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं। इसके बाद आपके पास फिर कुछ सवाल आपके पास आएंगे, जो सवालों के बीच में मैं आपको बताऊंगा, जैसे लोअर केस है, अपर केस है, स्ट्राइप है, फिर आपके पास रिप्लेस है, फाइंड है, स्प्लिट है, फिर ज्वाइन हमारे पास आता है। तो इन सब चीजों को जो है हम इस्तेमाल करेंगे हमारे पास जब आपके आगे प्रोग्राम्स चल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि हम जितना ज्यादा डिटेल में जाएंगे उतना ज्यादा टाइम हमें उसके लिए चाहिए, फिर प्रैक्टिस के लिए हमारा थोड़ा टाइम कम हो जाएगा। तो ये सवाल हम सारे प्रैक्टिस के वक्त मजीद सवाल को सॉल्व करेंगे। आई होप कि यू ऑल हैव ओपन योर पाइचार्म ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम। सो लेट्स गो टू द practical part for today's class. Okay class, so starting with the practical task for today's class. So as I mentioned कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए, तो हम अपने कंबाइन स्ट्रिंग वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारा एक प्रोग्राम बना हुआ है और उसमें दो अलग अलग वेरिएबल्स है, मतलब कि जिसको हमें कंबाइन करके फाइनल रिजल्ट दिखाना है, तो उसके अंदर हम इसको किस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा हमारे पास है कि हमारे पास यूजर का जब डेटा चल रहा है तो हमारा फर्स्ट नेम, ठीक है, हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, इक्वल टू कर दिया और इनपुट, हमने यहाँ पर एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, हमने हमारा सबसे पहला जो प्रोग्राम है उसके एग्जांपल का ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पर लिख दूं ताकि आपको कंसिडरिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल हमारे पास आ गया, सेकंड हमारे पास आ गया लास्ट नेम, हमने लास्ट नेम यहाँ पे करके इक्वल टू, और सेम चीज हमारे पास है कि हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, आप लास्ट नेम के हिसाब से बता देंगे। ठीक है, तो एंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, सो एंटर योर नेम हमारे पास आ गया। अब क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करना है, तो जब भी हमेशा याद रखना कि जब हमें दो वेरिएबल का रिजल्ट किसी एक जगह पर चाहिए, ठीक है, तो हमें हमेशा एक नया वेरिएबल जनरेट करना पड़ेगा। सो आई एम हियर क्रिएटिंग अ न्यू वेरिएबल फुल नेम के नाम से, फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस in what is comma space to give the space between the names. I will tell you कि why I give these names. चलो before I will not give the name, then हम बताता हूँ कि दोनों में क्या आएगा, then plus last name।
हमारा फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, प्रिंट योर फुल नेम इज, ठीक है, और हमने यहाँ पे कॉमा के बाद कर दिया फुल नेम, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पर आकर खत्म हो गया। लेट्स सी कि अब हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। हमने रन किया, फर्स्ट नेम लाइक माय फर्स्ट नेम इज काशिफ अली, काशिफ सॉरी, एंड लास्ट नेम इज अली, काशिफ अली। सो इट्स कंबाइंड माय नेम। कि हमने यहाँ पर क्या किया, स्पेस देखिए काशिफ, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस दिया तो स्पेस आ गया। आई विल शो यू अगेन। सी व्हेन आई एम राइटिंग द नेम देयर इज नो स्पेस, माय माउस कर्सर इज नेक्स्ट टू द नेम, सो आई रोट काशिफ, another one is also with the name Ali. So see there is no spacing. So string handling is about this only, कि जो भी डेटा आपके पास आ रहा है उस डेटा को आपने कितने अच्छे से लेकर चलना है और उसमें क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, डॉट, इसको कर दिया अपर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इसको आके अपर कर दिया। तो इससे क्या होगा, इसमें जो भी वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, अपर केस हो जाएंगी। बट साथ में इन दोनों नाम के बीच में स्पेस नहीं आ रहा, क्योंकि स्ट्रिंग हैंडलिंग है और स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए हमने प्लस के बाद स्पेस दिया, इन्वर्टिस कोमा स्पेस। इन्वर्टिस कोमा का मतलब हमारे पास क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा होता है, देन स्पेस एंड देन वी प्लस साइन, बिकॉज प्लस साइन फॉर द कंबाइनिंग स्ट्रिंग। तो इसलिए दो प्लस साइन हमारे पास यहाँ लगे, एक प्लस साइन इस नेम के लिए, फिर हमने ये वाला ऑब्जेक्टिव ऐड किया, फिर एक और प्लस साइन लिया जिसमें हमारा लास्ट नेम इस तरीके से आ जाए। तो हम रन करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा काशिफ और दूसरे पे लिखा अली। सी सारी चीजें ऑटो एडजस्ट हो गई, स्पेसिंग भी सारी एडजस्ट हो गई, ऑल लेटर्स क्या हो गए, अपर केस के अंदर हमारे पास आ गए, ठीक है। सो फार इज क्लियर। अब हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया पहले, जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें की थी। Now the next question, the objective for the next question is string indexing and slicing. Okay, we have to give the index to the value and we have to apply some slicing. Then we go the practice for that कि हमारे पास जीरो पे क्या आएगा, टेक्स्ट पे क्या है, तो उन सबका रिजल्ट हमारे पास क्या क्या आउटपुट हो रहा है। लाइक सेम थिंग कि हमने एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट के नाम से या स्ट्रिंग के नाम से और उसमें स्टोर करा दिया पाइथन, ठीक है, एक वर्ड। अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं और हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट ओपन देन टेक्स्ट, जो हमारा टेक्स्ट है। अब इसके ऊपर क्योंकि हमें इसकी स्लाइसिंग करनी है, इसके अंदर जो हमें इंडेक्सिंग करनी है, तो हमने यहाँ पे पहले भी बात कर दी कि भाई इंडेक्स 0 को आउटपुट कर दो, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करो, प्रिंट में हमारे पास है टेक्स्ट, ठीक है, और इसी टेक्स्ट को क्या करो आप, हम कर रहे हैं हमारे पास दूसरा पार्ट जिसके अंदर माइनस के साथ हमारे पास सीधे चले रिवर्स के ऊपर, ठीक है। हमने बात की थी ना रिवर्स की, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -1 फॉर द रिवर्स वैल्यू, ठीक है। एंड द थर्ड वन वी आर गोइंग फॉर द रेंज, प्रिंट टेक्स्ट, ठीक है, और हमने इसको दे दिया 1 2 4, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स के अंदर डिस्कस किया था कि एक वेरिएबल हमारे पास है, उसकी 0 वैल्यू फॉर द इंडेक्सिंग, -1 फॉर द रिवर्स, ठीक है, एंड 1 2 4 फॉर द स्लाइसिंग, कि हम इस वर्ड को ड्रॉप यानी कि डिवाइड कर रहे हैं मल्टीपल रेंज के अंदर। सी फर्स्ट 0 के ऊपर क्या था, p था, -1 के ऊपर n था लास्ट वैल्यू, और फिर हमारे पास यहाँ पर लास्ट 4 वैल्यूज हमारे पास सामने दिख गई। अगर हम यहाँ पर आके इसको 3 करते हैं और इसको आकर -2 करते हैं और इसको आकर 1 2 5 करते हैं, तो अब देखो अब हमारे पास क्या वैल्यूज आती है, ठीक है, h n n o, ठीक है। 5 वैल्यू हमारे पास आ गई कि फिफ्थ को वो काउंट नहीं करेगा क्योंकि इक्वल टू वाला चक्कर है, सही है। तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन था जिसके साथ हमने एग्जांपल्स डिस्कस करी, क्योंकि 3 उसमें इंक्लूडेड है, लाइक द 0 गिव द फर्स्ट लेटर, -1 गिव द लास्ट कैरेक्टर्स और -2 लाइक सेकंड लास्ट कैरेक्टर्स यूजिंग द इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंडेक्सिंग, माइनस के अंदर चल रही है।
फिर then we slice the string from 1 to 3 and 1 to 4 because you wanted to go for the fourth value, then you have to give the extra because वो उसके बराबर है. जैसे ही फिफ्थ वैल्यू आएगी तो वहां पे उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा. ये हमारे पास पार्ट सेकंड था. ठीक है. दिस ऑल्सो आई एम शेयरिंग विथ यू ऑन अ टेक्स्ट. Now the third example is about using string method for lowering, strip and replace. कि जो भी हमारा मैसेज है उसके अंदर अगर हमें उसको अपर केस करना है, लोअर केस करना है, या उसमें कोई चीजें हमें चेंज करनी है, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था थ्योरेटिकल पार्ट में कि हमें लोअर, स्ट्राइप, रिप्लेस करने के भी कुछ मेथड यूज करने हैं. अब अगेन सवाल ये आता है कि सर अब हमें कब इस्तेमाल करना है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आपका क्वेश्चन कैसा है. Like if you wanting collecting a name of the students and the data is about like first name and the last name, so you have to apply each and everything. Like this should be the full name, no extra spacing. The things should be in the small letters, okay, all caps. Okay, you should combine the things. You have to remove the extra spaces because when we writing, हमें अंदाजा नहीं होता कि हमसे extra space count हो जाए. और कंप्यूटर के अंदर spacing will going to take space in a computer system. ठीक है. So third example, using string methods. क्या हमारे पास अलग अलग है. हमारे पास एक मैसेज का वर्ड है. ठीक है. हम यहाँ पर इसको टेक्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्रॉम्प्ट मैसेज है. हम इसको ले लेते हैं प्रॉम्प्ट. ठीक है. प्रॉम्प्ट और टेक्स्ट कर लेते हैं. ठीक है. प्रॉम्प्ट टेक्स्ट हमारे पास आ गया कि हमारे पास ताकि छोटा वर्ड भी हो लिखने में और कॉपी करने में हमारे पास इजी रहे. तो हम सबसे पहले यहाँ पर या तो यूजर से कलेक्ट करवा लें या हम जो है वो खुद कोई एग्जांपल दे दें. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज पाइथन ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास. ठीक है. अब इसके अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है. हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया जानबूझ के ताकि जो चेंज हो हमें पता चले कि इसमें चेंजेस क्या आ रही है. पहले का हमारा मैसेज था जिसके साथ हम प्ले करेंगे, स्ट्रिंग हैंडलिंग करेंगे. तो हमारा पहला पार्ट हो गया. अब हम यहाँ पे प्रिंटिंग के पार्ट आकर हम यहाँ पर आप चाहो तो प्रिंट करवाओ, आप चाहो तो किसी दूसरे वेरिएबल से भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं. जैसे कि हमने सबसे पहले सवाल में क्या था कि हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को फुल नेम के अंदर सेव करवाया था. तो हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट ओपन. ठीक है. अब हमारे पास था प्रोटेक्स्ट. ठीक है. प्रोटेक्स्ट के साथ डॉट लोअर कि जो भी मैसेज हमारे पास था अब हमने उसको उस तरीके से ले लिया. ठीक है. प्रोटेक्स्ट हमारे पास आ गया. जो लोअर करना था, लोअर के लिए आपके पास ब्रैकेट्स आ गए. पहले दो ब्रैकेट्स उसमें जो भी सेव है, ये वाला ब्रैकेट इस कमांड के आपके साथ था. ठीक है. सेकंड पार्ट प्रिंट ब्रैकेट ओपन लोअर टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप. स्ट्रिप का मतलब ये होता है कि जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं सेंटेंस के शुरू होने से पहले और सेंटेंस के खत्म होने के बाद, ठीक है, दोनों के एंड के ऊपर आपको ये बताएगा कि भाई आपके पास क्या है और क्या नहीं है. ठीक है. तो स्ट्राइप का लिखने का मकसद हमारे पास ये होता है कि ऑटोमेटिकली उस स्पेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा. ठीक है. तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया. हमने यहाँ पर इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया. अब हम आते हैं हमारे तीसरे पार्ट के ऊपर. प्रिंट प्रोटेक्स्ट डॉट रिप्लेस. अब हम वर्ड को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करवा रहे हैं. ठीक है. हम रिप्लेस क्या करा रहे हैं, हम सिर्फ पाइथन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे चीजें चेंज कराएंगे. हमने यहाँ पे ब्रैकेट लिखा, हमने उसको लिख दिया कि भाई पाइथन जो कि हमारा वर्ड था जिसको हमें रिप्लेस करना है वो सबसे पहले आएगा. ठीक है. पाइथन आपने ब्रैकेट करने का क्लोज रखा. अब आपने वो सेंटेंस लिखना जो रिप्लेस करवाना है. ठीक है. देखो यहाँ पर इसने हिंट भी दे दी कि आपके पास ओल्ड और न्यू, कि ओल्ड स्टेटमेंट आपकी क्या आती है, उसके बाद नई स्टेटमेंट आपने क्या लिखनी है. तो नई स्टेटमेंट लिखनी है पाइथन कैपिटल के अंदर पाइथन विद एआई. ये हमारी रिप्लेसमेंट थी, मॉडिफिकेशन थी. किसी लाइन के अंदर हम जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट में हम करते हैं ना फाइंड एंड रिप्लेस, इसी तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम कोड के अंदर कुछ करना चाहते हैं तो हम कोड में इस तरीके से करते हैं. नाउ रन एंड लेट्स सी के व्हाट द सिस्टम मेक चेंजेस. ठीक है. देखो सबसे पहले हमारा लोअर क्लास था कि पूरा का पूरा लोअर क्लास में हो गया. सेकंड पार्ट हमारा क्या था, स्पेस थे. देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास स्पेस आ रहा था.
वो स्पेस अब क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। तीसरे वाले में हमने क्या किया कि हमें पाइथन हटाकर पाइथन विद एआई करना था, क्योंकि हम सिर्फ डायरेक्ट एआई लिखते तो उसको रिप्लेस करता, सिर्फ एआई लिखा हुआ आ जाता। लाइक कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एआई लिखता रिप्लेसमेंट में, तो ये पाइथन को वाइप करके एआई लिख देगा। सी, एआई आ गया। इसलिए हमने यहाँ पर पहले क्या लिखा कि भाई हमें पूरा सेंटेंस चाहिए पाइथन विद एआई ऑनलाइन क्लासेस रन। सी दिस थ्री थिंग्स। सो फर्स्ट, लोअर इज गोइंग टू मेक एवरीथिंग लोअर। ठीक है, अगर आपको अपर केस करना है आप इसको ऑल अपर केस कर दो। ठीक है, तो अब ये ऑल कैपिटल हो गया, सी पूरा कैपिटल हो गया। तो आपने जो चीज जैसे करवानी है, ये पूरी लिस्ट है, उस लिस्ट की मदद से हम जो है ना वो चीजें चेंज करवाते हैं। ठीक है, सो फार इज क्लियर, इट्स मेक सेंस। एग्जाम्पल नंबर 4 इज अबाउट स्प्लिट एंड ज्वाइन। हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग करनी है, किसी सेंटेंस को तोड़ना है और किसी को जोड़ना है। स्प्लिटिंग एंड ज्वाइनिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, इट्स ऑल्सो वेरी इजी, बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द सेंटेक्स, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो जो लिखवा रहा हूँ वो सेंटेक्स आपका इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन के हिसाब से आप उसको वहां पर यूज कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ वन text line, there is a one text line. In that text line we have fruit names like apple, banana and grape. ठीक है, और ऑरेंज हम कर सकते हैं इसको ऑरेंज, एंड लास्ट हम कर सकते हैं ग्रेप्स। अब ये देखो आपने यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट लाइन है, इसके अंदर जो है वो सब चीजें विदाउट स्पेस है। स्प्लिट करके हमें चीजों को सेट करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्प्लिट करेंगे, एक कंटिन्यूस सेंटेंस है जिसमें कॉमन चीज हमारे पास है कोमा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो हम सिंपल यहाँ पे हमारे पास आए, हमने एक सेम वेरिएबल बनाया एक और फ्रूट्स या नेम्स के नाम से, फ्रूट नेम्स। ठीक है, फ्रूट नेम्स के नाम से वेरिएबल बनाएंगे जहां पर हम एक्चुअल डेटा क्या करेंगे, स्टोर करवाएंगे। लाइक टेक्स्ट लाइन डॉट स्प्लिट, क्योंकि हमें इसको तोड़ना है। स्प्लिट क्या करना है, आपने ब्रैकेट इनवर्टेड कोमा के बीच में कोमा, आपने स्प्लिट क्या करना है, इस कोमा को स्प्लिट करना है जो कि इस पूरी लाइन के अंदर गिवन है। ठीक है, उसके बाद जब हम आपको आउटपुट करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से हमारे पास आउटपुट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट ओपन फ्रूट। ठीक है, फ्रूट्स फ्रूट नेम्स, ये हमारा वेरिएबल था। अब हम इसको देखते रन करके कि इसने हमें यहाँ पर क्या करके दिखा दिया। देखा, यहाँ पर सारे कंबाइन थे और इसने हम सबको क्या किया, इसने स्प्लिट कर दिया सारे के सारे कैरेक्टर्स को आफ्टर द कोमा। जहां जहां कोमा आ रहा था वहां पर उसने स्प्लिट कर लिया। अगर आपको हाइफन होता तो आप हाइफन लिखते, स्पेस होता तो आप स्पेस लिखते। जिस तरीके से आपने स्प्लिट करना है आप उसको उस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, अब ये पहला पार्ट था कि जिसको हमने क्या करा, स्प्लिट कर दिया। अब हमें स्प्लिट नहीं करना, हमें इन तीनों के बीच में कोई कैरेक्टर ऐड करना है। लाइक फॉर एग्जांपल एंड कैरेक्टर करना है, हमें ज्वाइन करना है आपस के अंदर, सब कैरेक्टर्स को एक लाइन के अंदर ज्वाइन करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक और वेरिएबल हम बनाएंगे जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन का वर्ड हम लगा सकते हैं जहाँ में काम आपका हो जाए। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया ज्वाइन और उसको इक्वल टू कर दिया इनवर्टेड कोमा के साथ एंड, हमारी लाइन आ गई। देन डॉट, सेंटेक्स क्या है, ज्वाइन। क्या सेंटेक्स ज्वाइन करना है, जो कि फ्रूट नेम के ऊपर हमारे पास गिवन है। जितने भी फ्रूट नेम है उन सबको आपस में क्या कर दो, ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के बाद सबके बीच में क्या लगा दो, एंड लगा दो। अब आप एंड लगाओ हाइफन लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं और प्रिंट के अंदर हम लिख लेते हैं ज्वाइन। ये ज्वाइन हमारा जो वेरिएबल था। ठीक है, रन। सी, पहला पार्ट हमारे पास क्या था, जिसपे हमने इसको डिवाइड किया। दूसरे पार्ट के बीच में हमने सबके क्या कर दिया, हाइफन लगा दिया। अब जो चीज आप यहां पे लिखोगे वो चीज वहां पर प्रिंट हो जाएगी। सी, एंड। ठीक है,
अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से इसको लेके चल रहे हो, क्या चीजें लेकर चल रहे हो, और किस तरीके से अपनी रियल लाइफ के अंदर इसको आप यूज कर सकते हो। वो आपकी प्रैक्टिस और टाइम गिविंग के ऊपर होता है कि आप इस तरीके से टेक्निक क्या है, सिंटेक्स क्या है, ये मैं आपको हेल्प आउट कर रहा हूँ। ठीक है। Now the real life examples like someone is entering the email addresses in your database. अब आपने string handling में उसके जो email address है उसको अलग अलग करना है। ठीक है। So our question is extract domain from an email. Those who are not aware with the domain, so domain is like, for example, if my email address is kashif.ali@ka.com. Okay, so this ka.com is a domain and the entire thing is my email address. तो अब हमें इसको स्प्लिट करना है और ka.com को जो है वो अलग से आइडेंटिफाई करना है। अब हमें पता नहीं है कि यूजर क्या रखेगा। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें सिस्टम ऑटोमेटिकली सारे ईमेल एड्रेस में से डोमेन क्या करेगा, बाइफिकेट करेगा या स्प्लिट करेगा। सो हम ईमेल एंट्री लेते हैं यूजर से। हमने यहाँ पर इनपुट लिया, इनपुट के अंदर हमने लिखा एंटर योर प्रॉपर email address. Examples, for example, abc@abc.com. ठीक है। आपने प्रॉपर ईमेल लिखना है, हमने उसको एग्जांपल दे दी कि भाई आपने पूरा लिखना है, उसमें कोई चीज आप छोड़ नहीं सकते। अब हम यहाँ पे इसके हिस्से बनाएंगे, तो आप यू कैन यूज एनी वेरिएबल्स। आई एम यूजिंग द वेरिएबल पार्ट। ठीक है। इक्वल टू ईमेल डॉट, क्योंकि ईमेल हमारा क्या था, जो वेरिएबल था जिसमें ईमेल स्टोर हो रही है। डॉट के बाद मतलब ये कि हम उन स्पेशल एरियाज को यूज कर रहे हैं। देखो ये स्ट्रिंग की सारी वेरिएबल्स है, मैंने सिर्फ आपको कुछ बताए थे, बट यहाँ देख रहे हो कितने सारे हैं। तो जो आपने यूज करना है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी जाएगा। जैसे मुझे करना है स्प्लिट। ठीक है। स्प्लिट के ऊपर हमने बात करनी थी, तो हैंड में देखो स्प्लिट आपके पास आ गया कि भाई स्प्लिट आ गया, हमने स्प्लिट लिखा। अब वो आपसे पूछ रहा है, रेफरेंस पूछ रहा है कि आपने रेफरेंस में क्या देना है। हमने रेफरेंस में बोला कि @साइन जहां पर है, क्योंकि ईमेल के अंदर @ के बाद की जो चीज है वो हमेशा क्या कहलाती है, वो आपकी ईमेल कहलाती है। ठीक है, सॉरी डोमेन कहलाती है। ये पार्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद हमें कंडीशन लगानी है कि हमें ये बताना है कि भाई पार्ट 2 अगर है, उसके अंदर जो कैलकुलेशन हमारे पास हो रही है, जो भी काम हो रहा है, वो फिर क्या करके है, डोमेन को लेकर है। ठीक है। तो हम यहाँ पर उसका एक पूरा एक फार्मूला लगाएंगे। इफ लेंथ, किसकी लेंथ, पार्ट की लेंथ, अगर पार्ट की लेंथ 2 से ज्यादा है, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी नॉट ज्यादा, इक्वल टू है, तो क्या करे, पार्ट सॉरी प्रिंट कर दे। किसको प्रिंट कर दे, डोमेन नेम को, कि उसमें अगर 2 हमारे पास आ रहे हैं, डोमेन हमारे पास आ जाएगा, कॉमा पार्ट इंडेक्स 1, कि उसके बाद जो उसकी पहली वैल्यू है उसको आप यहां पर ले आओ। सही है। एल्स अगर ये सब नहीं होता तो आप प्रिंट क्या कर दो, प्रिंट इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। ठीक है। अगर वो उसके फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है, अगर वो पार्ट उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो फिर आप उसको क्या कर दो, उसके डोमेन को बोल दो कि भाई आपने इनवैलिड डोमेन डाला है। ठीक है। जस्ट लेट्स सी। तो अभी से इसने मुझे एरर दे दिया। लाइन नंबर 9, प्रिंट। ठीक है। सो एग्जाम्पल, एंटर योर प्रॉपर ईमेल एड्रेस है, एग्जाम्पल abc@abc. So I am writing kashif.ali, या काशिफ अली @runwithtech.com. ठीक। ठीक। अब इसने जैसे ही @ था, उसके बाद वाले कैरेक्टर से क्या करना शुरू कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब अगर हमारा फॉर्मेट नहीं है, हम लिखते हैं भाई kashif.ali@, ठीक है, लर्न विद टेक डॉट की जगह हम कॉम लिख देते हैं खाली। सही। .com उठाकर लेकर आया वहां पर, क्योंकि हमारे पास @ के बाद प्रॉपर वैल्यूज हमारे पास हैं। ठीक है। अब तीसरी बात,
अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि डोमेन्स हमारे पास बहुत सारे किस्म के, क्योंकि बाइफिकेशन जो हमारे पास है वो @ की है, हम लिखते हैं काशिफ अली, और @ की जगह मेरे से गलती से टाइप हो जाता है डॉट, और हम यहाँ लिखते हैं लर्न विथ tech.com। सी इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। क्यों इनवैलिड फॉर्मेट? क्योंकि इसके अंदर @ का साइन नहीं है। तो अक्सर जो हम बात करते हैं कि आप वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, तो आपकी वैलिडेशन एक ईमेल बन गया है। ठीक है, गॉट इट। सो ये थोड़ा सा मुश्किल वाला सवाल मैंने करवाया ताकि इसमें थोड़ा सोचना पड़े, क्योंकि मेरे पास सवाल बहुत सारे हैं और हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, तो वी नो दैट कि किसका सॉल्यूशन किया है। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस पार्ट एक्सट्रैक्ट, सो ये एक्सट्रैक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू सी व्हाट यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डोमेन, and whenever you got to know that how you are going to bifurcate the domain, क्योंकि in the email address after the @ the rest of the thing is domain। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट पार्ट को भी प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि हमें वैलिडेशन भी लगानी थी कि ईमेल का लेंथ बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर पार्ट के साथ इंडेक्सिंग भी लगाई कि हमें जब इंडेक्सिंग और सारी चीजें यूज करनी तो हम उसको किस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके क्लास, आई होप कि you learn something new in today's class। So in the next class, we will do more practice, more questions, more scenario. I will share assignment questions or practice question. Then you will do the practice and share your assignment with me. Okay. Okay. Another examples which we are going to discuss now. It's like we have to prepare a program to count alphabet repeated in a single sentence. कि हमें कोई एक सेंटेंस दिया जाए यूजर की तरफ से, या यूजर टाइप करे और उसने ये चेक करना है कि कोई स्पेशल एक करेक्टर है या अल्फाबेट है जिसको उसने आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम कोड किस तरीके से लिखेंगे। सो काउंट हाउ मेनी, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स ई अल्फाबेट अपीयर्स। ठीक है, कितनी दफा एक प्रोग्राम में जो सेंटेंस है उसमें ई वर्ड जो है वो कितनी दफा आया है। हम यहाँ पे एक ले लेते हैं कि भाई टेक्स्ट लाइन हमारी है जो हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं, आपके पास पहले से लिखा हुआ है, एंटर योर टेक्स्ट टू चेक हाउ मेनी टाइम्स ई अपीयर। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पर एक बना दिया कि भाई अपीयर्स, हाउ मेनी टाइम्स ई अपीयर्स। ठीक है, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन बना दिया कि भाई इस तरीके से यूजर इसमें क्या करेगा, टेक्स्ट लाइन में इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। अब हमें यहाँ पे जो काउंट करना है, हमने एक वेरिएबल है, क्योंकि हमने बात की थी कि जब भी एक वेरिएबल से इंफॉर्मेशन हमें कहीं दिखानी है, कहीं टेम्परेरी स्टोर करानी है, तो हमें जो है उसको किसी एक और वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करवा देते हैं काउंट ई, क्योंकि ई हमारे पास है तो काउंट ई के नाम से हमने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, काउंट ई के नाम, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर ई काउंट हो रहा है। टेक्स्ट लाइन पे जो हमारा वेरिएबल है उसको हमने रेफर दिया, डॉट किया, अभी हमसे पूछ रहा है कि भाई आपने क्या करना है इसके अंदर। हमने कहा भाई इसमें हमें काउंट करवाना है, क्या काउंट करवाना है, ई कैरेक्टर्स। तो स्मॉल लेटर के अंदर ई कितनी दफा है ये हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, तो हमने ये लाइन लिखी। सेकेंड पार्ट हमारी जो लास्ट लाइन होगी, जो भी वैल्यूज है हमने उसको प्रिंट करना है। हमने लिखा भाई प्रिंट प्रॉम्प्ट, हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स ई अपीयर्स। ठीक है, कि नंबर ऑफ टाइम ई कितनी दफा अपेयर हुआ है, क्योंकि हमने कहाँ सेव करवाया था, काउंट ई में सेव करवाया था। हम काउंट ई को ले जाकर दोबारा से हम इसको सही करेंगे ताकि काउंट ई में जो है ना वो हमें वैल्यूज मिलती है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे आके लिखा काउंट ई, क्योंकि पहली लाइन क्या थी, यूजर ने एंटर करनी है, उसके अंदर हमारे पास ये डेटा चेक किया जाएगा कि डेटा हमारे पास क्या है और किस तरीके से जो है उस लाइन के अंदर हमारे पास वो वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, हमने इसको रन किया, नीचे इसने हमसे लाइन पूछी, हमने यहाँ पे सिंपल सा लिखा कि भाई हियर इज अ सेंटेंस। ठीक है, हियर इज अ सेंटेंस टू टेस्ट। अब इसके अंदर कितने ई हैं, कितनी दफा आए, क्योंकि एक ऐसा ये सेंटेंस है जिसमें ई हमें ऐसे भी पता चल जाएगा कि हमने सही लिखे या गलत लिखे। सी नंबर्स ऑफ ई रिपीटेड 6 टाइम। अगर हम चेक करें 6 टाइम है, 1 2 3
4 5 एंड 6। अब आपके पास यहाँ पे 6 आ गए। अब हम चाहते हैं किसी और वर्ड को चेक करने के लिए, तो आप मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी वर्ड की बात कर रहे हैं जैसे के। अगर मेरे को कोई के वर्ड इस्तेमाल करना है तो के के लिए हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा कोई ऐसा जिसमें सबसे ज्यादा के हमें दिख रहे हो। तो एक हमारे पास एक काफी टाइम पहले जब हम सर्च कर रहे थे और जब मैं खुद सीख रहा था, तो देन आवर टीचर टोल्ड मी अबाउट लाइक किचन आर काइंड एंड कीप प्लेइंग इन द पार्क। ये एक ऐसा है जिसके अंदर के का वर्ड बहुत ज्यादा है। हमने कहा एंटर। अब यहाँ पर ई सॉरी हमारे पास आता, हमने यहाँ पे चेंज नहीं किया, हमें यहाँ पे भी चेंज करना था, हमने यहाँ पे कर दिया के। ठीक है, और काउंट ई, अब वेरिएबल कुछ भी रखो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो चेंज कर दो क्योंकि आपने वहां पर उसकी लॉजिक चेंज कर दी तो वो वैसे ही चेंज हो जाता है। अब हमने के की बात की, ठीक, यहाँ पर भी हमें के करना है, हमने के कर दिया, हम रन करते हैं। के अपेयर्स, हमने यहाँ पे दोबारा सेंटेंस लिखा, ठीक है, किटन आर काइंड एंड कीप प्लेइंग इन द पार्क। See, 4 times. K, 2, 3 and 4. So आपने जो चीज काउंट करवानी है, जैसे काउंट करवानी है, आप उसमें वो चीज काउंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि स्पेस कितना है, इनके बीच में कितने स्पेस है, आप स्पेस से वर्ड काउंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई आपका वर्ड काउंट कितना है, कि सेंटेंस में कितने वर्ड इस्तेमाल हुए। तो या तो आप वर्ड के अंदर हर किसी वर्ड का तो अलग है, तो हम सिंपल यूज करते हैं स्पेस। हम यहाँ की जगह क्या कर लेते हैं, स्पेस का वर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर योर टेक्स्ट टू चेक हाउ मेनी टाइम्स स्पेसेस। ठीक है, या आपको वर्ड काउंट कर लो तो वर्ड काउंट के अंदर भी इसी तरीके से दिखेगा। हम सेम स्टेटमेंट को यूज करते हैं, किटन आर काइंड एंड कीप प्लेइंग इन द पार्क। हमने एंटर किया, 8 टाइम्स जो हमारा स्पेस आ रहा है, हमने देखा ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आपने जो भी चीज काउंट करवानी है, जैसे भी काउंट करानी है, आप टेक्स्ट लाइन डॉट काउंट करके ब्रैकेट में उस चीज को मेंशन करो। हमें स्पेस काउंट करवाना था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ स्पेस, एम्प्टी। ठीक है, आपने जो करेक्टर करवाना है, इन्वर्टेड कॉमा कराने हैं, डॉट्स करवाने हैं, कोई पंक्चुएशन स्पेशल किसी पंक्चुएशन की बात करनी है, तो आप उसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, होप यू विल डू द प्रैक्टिस एंड you have enjoyed that class.